حروف ہیں 3 حمزہ لام اور فا. ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ حمزہ کس طرح ادا ہوتا ہے. حمزے کی ادائیگی سخت ہے. حمزے کی ادائیگی کیا ہے؟ سخت ہے. دوسرے نمبر پہ لام کے نیچے زیر ہے. زیر کو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ باریک پڑھنا ہے. تیسرے نمبر پر فا ہے. فا کے اندر یہ آواز کیا کرنا ہے؟ واضح کرنا ہے. یہ صفت ہے ہم سے. سمجھا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیں آپ غور سے سنیں. حمزہ سختی سے پڑھنا. لیف لیف. یہ لام کے اندر ہونٹ کو نیچے گراؤ. زیر ہے نا. لیف 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 لیف. حمزہ کو سختی سے, حمزہ کو موٹا نہیں کرنا ہے. حمزہ کو موٹا نہیں کرنا. لیف لیف لیف. صحیح ہے. الف. اس میں 3 حروف کس طرح ہوئے؟ حمزہ سختی سے, لام کے نیچے زیر, زیر کو یا کے طرف لے جائیں گے, اور آگے فا ساکن ہے. اس میں یہ آواز پڑھے. کیشنا نہیں ہے. کیشنا نہیں. الف 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 الف. اور دیکھو زیر میں الف الف لی 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 الف الف. صحیح. آگے با. کے اندر ایک جو ہے نا کہنا میں با میں ہونٹ سختی سے ملتے ہیں, لیکن اس طرح سختی سے بھی نہ ہو کہ ایسے بن جائے, اگلے کو محسوس نہ ہو, آپ کو خود محسوس ہو. صحیح ہے. دونوں ہونٹ ملیں گے. صحیح ہے. بحری. با کیا ہے؟ بحری. یعنی تر والا حصہ ہونٹوں کا لگے گا. کون سا حصہ لگے گا؟ تر والا. اس کے بعد الف ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ الف. اس کو ایک الف کھینچنا ہے. اس کے بعد ہا کی آواز, حمزہ کی آواز, اور ایک الف سے زیادہ کھینچنا ہے, ایک الف سے کم کھینچنا. یہ ساری غلطیاں میں نے بتائی ہے. ان چیزوں سے بچنا ہے. صحیح ہے. کس طرح پڑھیں گے؟ با با وہ موٹا بھی نہیں کرنا. اس کو موٹا بھی. بے بے. الف کو گرانا بھی نہیں ہے. کس طرح پڑھیں گے؟ با 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 یہ آواز دو. یعنی با کا جو الف ہے اس کو ہوا میں ختم کرو. اس کو آخر میں کہیں پہ ٹھہراؤ نہیں. صحیح ہے نا. حروف مد للہوائی تنتہی. ہوا میں ختم ہوتے. یہ ہوا میں آواز کو ختم کرو. با با. آخر میں آواز کو کہیں ٹھہراؤ نہیں. اگر ادھر ٹھہرائیں گے حمزے کی آواز آئے گی یا پھر ہا کی آواز آئے گی. صحیح ہے. با با با. اس تا کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے, سامنے زبان جو ہے یہ سامنے کے 2 دانتوں کے جڑ میں لگے گی. زبان کہاں لگے گی؟ جڑ میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں بعض ساتھی یہ غلطی کر رہے ہیں, ٹا ٹا ایسے زبان باہر نکلتی ہے. غلط. کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو زبان وہاں لگے گی, اور ایک الف کی مقدار ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ کھینچ کر پڑھنا ہے. اور الف میں جس قسم کی غلطیوں کا میں نے آپ کو بتایا تھا ان سے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بچنا ہے. صحیح ہے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ تا. تا کو موٹا نہیں کرنا ہے. تا کو موٹا. اچھا, جس وقت ہم زبر پڑھتے ہیں نا یا الف پڑھتے ہیں اس وقت منہ کو کیا کرنا ہے؟ کھولنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کھولنا ہے. دیکھیں تا 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 تا. یہ بات سادی ان کی زبان نکلتی ہے باہر, لیکن اس کو محسوس نہیں ہوتا. یہ آپ شیشہ پکڑ کے جب دیکھیں گے نا, اس کو پڑھیں گے, آپ کو محسوس ہوگا کہ زبان باہر نکل رہی ہے یا نہیں نکل رہی ہے. صحیح ہے. تا 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 تا. کرتے ہیں الف سے. صحیح ہے. الف کے اندر کتنے حروف ہیں؟ 3. کتنے حروف ہیں؟ 3. حمزہ لام اور فا. حمزہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ سختی سے. کس طرح پڑھیں گے؟ سختی سے. حمزہ کو سختی سے پڑھیں گے. لام کے نیچے زیر ہے, باریک پڑھیں گے.
इसको शेर को या की तरफ माइल करेंगे। किस तरफ माइल करेंगे? शेर के अंदर होंठ को नीचे गिराएंगे। आगे फा है, फा के अंदर ये आवाज़ हमने निकालनी है सिफत हम से। बात समझ में आ रही है? सही है। बड़े देखिए एलिफ 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 देखो लीफ के अंदर होंठ देंगे। एलिफ 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 होंठ नीचे गिराएंगे। एलिफ 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 जब सख्त सख्त पढ़ना है, मोटा नहीं करनी, मोटा जब मोटा एलिफ 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 एलिफ। आगे बा, बा के अंदर होंठ सख्ती से मिलेंगे और होंठों की तरी वाला हिस्सा जो है उसको मिलाएंगे और सख्ती इस तरह करेंगे कि आप अगले सामने देखने वालों को होंठों की सख्ती महसूस है और खुद महसूस है। सही है। और उसमें अलिफ है, अलिफ के अंदर इस्तेमाली गलती मैंने बताई नहीं ना, उससे बचनी, उससे क्या करना है? बचना है। किस तरह पढ़ेंगे? बा बा आखिर में आवाज़ को कहीं भी ठहराना नहीं है, हवा में इसको छोड़ देना है। बाकी जो अलिफ को हम पढ़ेंगे इसको हवा में छोड़ देना है। बात समझ में आ रही है? किस तरह? बा पढ़े बा 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 वाले हिस्सों को मिलाएंगे तो खुद सख्ती से मिलेगी, होंठ मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? उसके बाद ता, ता के अंदर जुबान बाहर नहीं निकलना है, ता ये गलत हो जाएगा। जुबान को सामने के दांतों की जड़ में लगाना है। कहाँ लगाना है? जड़ में, अंदर की तरफ। सही है। और अलिफ में इस्तेमाली गलती जो मैंने बताई है उससे हम क्या करना है? बचना है। बात समझ में आ रही है? किस तरह पढ़ेंगे? ता 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 ता। देखो ज़बर में और अलिफ में होंठ खुलते हैं। होंठ क्या होते हैं? खुलते हैं। ता 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 ता। ये अलिफ का मिक़दार है। ता ता बात समझे ना? मोटा नहीं करेंगे। लाम के नीचे ज़ेर है, ज़ेर के अंदर होंठ को नीचे गिराएंगे और ज़ेर को या की तरफ ले जाएंगे। किसकी तरफ ले जाएंगे? या की तरफ ले जाएंगे। सही है। फा में इस आवाज़ को ज़ाहिर करेंगे सिफत हम से। सही है। किस तरह पढ़ेंगे? एलिफ 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 होंठ को नीचे गिराने से एलिफ 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 एलिफ। बा को होंठों के अंदर जो तरी वाला हिस्सा है इनको सख्ती से मिलाएंगे, लेकिन सख्ती से ऐसे मिलाएंगे कि आपको खुद महसूस हो, देखने वाले को महसूस ना हो। सही है। और बा में अलिफ है, अलिफ जो पढ़ेंगे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और जो 8 किस्म की इस्तेमाली गलतियाँ मैंने बताई थी उससे क्या करना है? बचना है। उससे क्या करना है? सही है। इस तरह पढ़ेंगे बा 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 तीसरा हर्फ है ता। तीसरा हर्फ क्या है? ता। ता के अंदर हमने क्या करना है? जुबान को पीछे जो दांतों का जड़ है ना, आखिरी हिस्सा है, वहाँ लगाना है जुबान, नोके जुबान को। सही है। आगे बाहर नहीं निकालना है, ता ऐसे नहीं पढ़ना है बल्कि अंदर लगाना है। सही है। और एक अलिफ की मिक़दार हमने खींचना है और अलिफ में इस्तेमाली गलतियों से हमने बचना है। सही है। किस तरह पढ़ेंगे? ता ता ता। इसका आसान तरीका ये है, आप शीशे लेके देखें ना, अगर आपकी ज़ुबान नीचे से नज़र आ रही है तो समझो कि आपकी ज़ुबान नीचे लग रही है। ये गलत है। सही है। अगर ज़ुबान दांतों के दरमियान में नीचे नज़र नहीं आ रही है तो समझो कि सही लग रही है। सही है। किस तरह पढ़ेंगे? ता 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 ता। सही है। इसको आप पढ़ो।
एक दो मरतबा सही पढ़ने से सही नहीं होता। ज़ुबान को सही पढ़ने का आदी बनाना है। क्या करना है? हमारी आदत बन जाए कि हम सही पढ़ें, आदत बन जाए कि हम सही पढ़ें। बात समझ आ रही है? आप इसको बार बार इन 3 हुरूफ को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। सही है? हाँ, इंशाल्लाह इसके बाद फिर अगले स्टेप में ये आपके 29 हुरूफ से हो गया, आपका कुरान सही होगा। बात समझे ना? मोटा नहीं करेंगे। लाम के नीचे ज़ेर है, ज़ेर के अंदर होंठ को नीचे गिराएंगे और ज़ेर को या की तरफ ले जाएंगे। किसकी तरफ ले जाएंगे? या की तरफ ले जाएंगे। सही है? फा में इस आवाज़ को ज़ाहिर करेंगे सिफत हम से। सही है? किस तरह पढ़ेंगे? अलिफ 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 होंठ को नीचे गिराने से अलिफ 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 अलिफ। बा को होंठों के अंदर जो तरी वाला हिस्सा है इनको सख्ती से मिलाएंगे, लेकिन सख्ती से ऐसे मिलाएंगे कि आपको खुद महसूस हो, देखने वाले को महसूस ना हो। सही है? और बा में अलिफ है, अलिफ जो पढ़ेंगे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और जो 8 किस्म की एहतिमाली गलतियाँ मैंने बताई थी उससे क्या करना है? बचना है। उससे क्या करना है? सही है? किस तरह पढ़ेंगे? बा 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 बा। तीसरा हर्फ है ता। तीसरा हर्फ क्या है? ता। ता के अंदर हमने क्या करना है? ज़ुबान को पीछे जो दांतों का जड़ है ना, आखिरी हिस्सा है, वहाँ लगाना है ज़ुबान, नोके ज़ुबान को। सही है? आगे बाहर नहीं निकालना, ता ऐसे नहीं पढ़ना है बल्कि अंदर लगाना है। सही है? और एक अलिफ की मिक़दार हमने खींचना है और अलिफ में होने वाली गलतियों से हमने बचना है। सही है? किस तरह पढ़ेंगे? ता 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 ता। इसका आसान तरीका ये है, आप शीशे लेके देखें ना, अगर आपकी ज़ुबान नीचे से नज़र आ रही है तो समझो कि आपकी ज़ुबान नीचे लग रही है। ये गलत है। सही है? अगर ज़ुबान दांतों के दरमियान में नीचे नज़र नहीं आ रही है तो समझो कि सही लग रही है। सही है? किस तरह पढ़ेंगे? ता 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 ता। सही है? इसको पढ़ो। एक दो मरतबा सही पढ़ने से सही नहीं होता। ज़ुबान को सही पढ़ने का आदी बनाना है। क्या करना है? हमारी आदत बन जाए कि हम सही पढ़ें, आदत बन जाए कि हम सही पढ़ें। बात समझ आ रही है? आप इसको बार बार इन 3 हुरूफ को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। सही है? हाँ, इंशाल्लाह इसके बाद फिर अगले स्टेप में ये आपके 29 हुरूफ से हो गया, आपका कुरान सही होगा। इसके अंदर कितने हुरूफ हैं? कितने हुरूफ हैं? हमज़ा लाम फा। हमज़ा को सख्ती से पढ़ना है, मोटा नहीं करना है। लाम के नीचे ज़ेर है, ज़ेर में नीचे होंठ को भी गिराएंगे और ज़ेर को या के तरफ ले जाएंगे। किस तरफ ले जाएंगे? या की तरफ। और फा के अंदर ये आवाज़ क्या करना है? जाना है। सही है? सिफत हम से तो किस तरह पढ़ेंगे? अलिफ 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 लिफ 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 अलिफ 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 अलिफ। हाँ, बात समझ में आ रही है? अलिफ अलिफ ज़ेर के अंदर, लाम के ज़ेर के अंदर होंठ को गिराना। अलिफ 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 अलिफ। समझ आया? बा के अंदर होंठों की तरी वाले हिस्से को मिलाएंगे आपस में और सख्ती से मिलाएंगे, लेकिन वो सख्ती अगले बंदे को नज़र ना आए, आपको खुद महसूस हो। बात ऐसे पढ़ते गलत है। क्यों? अंदर का हिस्सा तरी वाले से, इसको बाहरी कहते हैं। बा को क्या कहते हैं? बाहरी। बाहर जो है ना समंदर है, तो ये तर है, इसको इसलिए बाहरी कहते हैं। और मीम को बर्री कहते हैं, वो खुश्की से आना होता है। कहाँ से? खुश्की से, होंठों की खुश्की से। ये होंठों की तरी से आना होता है, तो इसको किस तरह पढ़ेंगे? तरी से। और इसमें अलिफ है, अलिफ के अंदर जो एहतिमाली गलतियाँ उससे हमने क्या करना है? बचना है। किस तरह पढ़ेंगे? बा 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 बा। देखो अलिफ के अंदर मुंह को खोलना है, ज़बर के अंदर भी खोलना है। बा 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 बा। सही है? ता के अंदर
زبان کی جو نوک ہے یہ دانتوں کی جڑ میں لگے. تا ایسے غلط ہے, یہ کیا ہے؟ غلط ہے. صحیح ہے, مخرج تبدیل ہو جائے گا. زبان جو نوک ہے یہ دانتوں کی جڑ میں لگے. ایک دوسری بات اس میں الف ہے, الف کے اندر ہم نے احتمالی غلطیوں سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. کس طرح پڑھیں گے؟ تا 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 تا. اس کا آسان طریقہ یہ ہے جب شیشہ پکڑا ہے, شیشے میں اگر نیچے زبان نظر آ گئی نا تا پڑھتے ہوئے تو آپ سمجھ لو کہ آپ کا مخرج غلط ہے. اگر نیچے زبان نظر نہیں آئی تو مخرج صحیح ہے. کیوں؟ جب زبان اوپر لگے گی تو نیچے تو نظر نہیں آئے گی. اگر نیچے لگے گی تا نظر آ رہی ہے, تا ادھر نظر نہیں آئے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ آپ نے اس کا جو ہے پریکٹس کرنا ہے اور بار بار پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ایک دو مرتبہ پڑھنے سے صحیح نہیں ہوتا, زبان کو صحیح پڑھنے کا عادی بنانا ہے. پڑھیں تا 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 تا